Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the matter around is us pure or not. Okay. So before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lecture. Already we have discussed the classification of matter on the basis of the pure substance and the mixture. Also the subcategories of the pure substances material will be elements and the compounds, and also the mixtures subcategories will be in the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. Then we have discussed about the pure substance and the mixtures difference. Also we have discussed the types of mixtures, that is the homogeneous and the heterogeneous mixture. Then we have discussed the true solution and the colloidal solution. True solution means the homogeneous mixture of the two or more substance, and the colloidal solution will be called as the heterogeneous mixtures of the two or more substances. Then we have discussed the suspension. Suspension and the colloidal solution will be the same, but there will be the minor difference. The suspension will be the different heterogeneous mixture, but we can see we can be seen the particles mixed with each other in these types of solutions. Okay. In colloidal solution, we can not see the particles mixing with each other. Okay. Then we have discussed the then now we have to discuss the Tyndall effect. What is the Tyndall effect? That is, okay, let us start. What is the Tyndall effect? When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of the light. The path of the light becomes visible in the solution. This effect is called as the Tyndall effect. मतलब सुबह सुबह जब भी हम लोग क्या करते हैं तो खिड़की के बाहर देखते हैं तो हम लोगों को एक रोशनी देखने को मिलती है सनलाइट की, और सनलाइट की रोशनी के अंदर हम लोगों को डस्ट के सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे. ओके, ये एक एग्जाम्पल था, बट उसको प्रॉपरली अगर आपको डिफाइन करना है, दैट यू कैन डिफाइन दैट द बेसिक डेफिनेशन फॉर दैट, when the light of beams come visible in the solution. Okay, light of beam comes visible in the solution, that can be known as the Tyndall effect of the nature. Okay, Tyndall effect can be seen when the light enters a room through a small hole due to the scattering of light by the dust and the smoke particle. हमको सुबह सुबह फॉरेस्ट या तो फिर जंगल जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी. जो लाइट है वो वहाँ से क्या हो रही होंगी, स्कैटर्ड हो गई. स्कैटर्ड यानी कि क्या, तो वो फैल रही होंगी, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर वो जो है वो फैल रही होंगी. ओके, तो उसको हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट. उस तरह का फिनोमिना हमको घर के अंदर भी देखने को मिलता है. ओके, उस तरह का फिनोमिना हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं. अगर कोई सॉल्यूशंस के अंदर से हम लोग लिक्विड के सॉल्यूशन के अंदर से हम लोग अगर लाइट की बीम को ट्रैवल करें तो क्या हो सकता है कि उसमें से लाइट जो है वो स्कैटर होकर हमको पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिलेंगे. तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट जो है वो कहेंगे. ओके, ये 3 एग्जांपल्स जो थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए टिंडल इफेक्ट के. Now let us talk about the saturated solution. So what is the saturated solution? If the solution which cannot be dissolved any more of solute at the given temperature, then it will be called as the saturated solution. अब इसकी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये बात क्या है कि अगर मैं एक पानी का ग्लास ले लूँ और उस पानी के ग्लास के अंदर मैं नमक डालते ही जाओ, तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला, फिर उसको मिक्स किया, दूसरा चम्मच नमक डाला, फिर उसको मिक्स किया, तीसरा चम्मच जो नमक डाला तो मिक्स किया, तो फिर एट अ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अभी मैं नमक को पानी के अंदर डालूंगा तो वो मिक्स नहीं होगा. तो जो भी पॉइंट के ऊपर इस तरह का फिनोमिना क्रिएट हो कि जब भी नमक पानी के अंदर मिक्स होना बंद हो जाए, ओके, इट डजंट गेट मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर, then now we can get this solution is given at the point is called as the saturated solution. अब इस सॉल्यूशन को मैं क्या कहूँगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहूँगा. मतलब इसके अंदर अब और कोई चीज़ मिक्स नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक ये चला गया है. ये जो सॉल्यूशन हम लोग नमक का और पानी का बना रहे थे वो अभी कहाँ पर पहुँच गया, वो एट अ पीक पहुँच गया है. अब उसके अंदर जो नमक है वो ज़्यादा मिक्सअप होगा नहीं, और उसी सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? Solubility is the substance of the amount of solute to present in the saturated solution of the substance. Solubility क्या है? तो जनरली solubility जो है वो क्या है, तो solute जो substance के अंदर जो solute present होते हैं in the saturated solution is called as its solubility. यानी कि कोई भी solution के अंदर
सॉल्यूट को समाने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। So what is the unsaturated solution? Unsaturated solution is the solution which can dissolve some more of the solute at the given temperature. Unsaturated solution यानी कि saturated solution से बिल्कुल ही opposite। इसके अंदर अभी भी हम लोग सॉल्यूट को डाल सकते हैं और सॉल्यूट को डालने के साथ साथ उसको मिक्सअप भी कर सकते हैं। जो भी हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें अगर और भी हम लोग ज़्यादा सॉल्यूट को डालेंगे और वो मिक्स होता जाएगा। कल ही मैंने बात की थी कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो भी पोर्शंस को हम लोग ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर लेंगे दैट कैन बी टेक एज द सॉल्वेंट, और जिसको भी लेस क्वांटिटी या लेस प्रोपोर्शंस के अंदर हम लोग लेंगे उसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूट। ओके, so when we take the solute as the salt or sugar, that can be categorized in the solute portions. Okay, and if we take the larger amount of water, that can be converted into called as the solvent. Okay, तो जो भी हम लोगों को अगर चीज़ ले रहे हैं तो अभी भी हम लोग सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डाल सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको सॉल्यूशन बनाने की पॉसिबिलिटीज़ है, अभी भी ज़्यादा हम लोग नमक डाल सकते हैं। और इस तरह का जो सॉल्यूशन हमको मिलता है जिसमें अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है नमक को मिक्स करने की या फिर शुगर को मिक्स करने की, उस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया। और सॉल्युबिलिटी क्या है, तो किसी सब्सटेंस के अंदर जो सॉल्यूट को समाने की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ओके, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बट गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो आपका होमवर्क है, दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो एक्सप्लेन करना है वो है आपको एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर है तो मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें मिक्स होंगी, होमोजीनियस मिक्सचर भी होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होगा। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम लोगों को पता है कि हम लोग पार्टिकल्स को विजिबल आई से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस में हम लोग विजिबल नेकेड आई से कोई भी पार्टिकल्स जो मिक्स हुआ है उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो मिक्स हुई है, एज कॉल्ड एज द सैंड एंड द शुगर और सैंड एंड द सॉल्ट। ओके, ये जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। वैसे ही होमोजीनियस के अंदर अगर हम लोग मान लो कि क्या करेंगे, वाटर और सॉल्ट ले लेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग अभी पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेटली देख नहीं सकते, विजिबल नहीं कर सकते नेकेड आई से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंसिडर करेंगे। पर अब हम बात करनी है कि ये जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का जो हम लोगों ने मिक्सचर तो बना लिया, नाव क्या करना है हम लोगों को कि वो जो मिक्सचर है उसको अभी हम लोगों को सेपरेट करना है। ओके, मतलब एक में से दूसरे को अलग करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स को हम लोग क्या करेंगे सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसके लिए जो टेक्निक्स है उसमें हम लोग सीखेंगे इवापोरेशन को, सेंट्रीफ्यूगेशन को, डिसेंटेशन को, सब्लिमेशन को, सेंट्रीफ्यूगेशन को, क्रोमेटोग्राफी को और डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारी मेथड्स जो है वो देखेंगे। ये मेथड्स के नाम डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन ये मेथड्स इतनी इजी है कि आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द इवापोरेशन प्रोसेस। तो इवापोरेशन यानी कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर मैं किसी कंपोनेंट्स को इवापोरेट होने के लिए रखूँ, इवापोरेट यानी कि हमको पता है ना, सनलाइट जो है वो क्या करेगा, किसी चीज़ को उड़ा देगा बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इट्स नेचर। ओके, तो क्या होगा कि भाई वो वेपर में कन्वर्ट होकर सेपरेट हो जाएगी और वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो बच जाएगा, उसको मैं कहूँगा सेपरेट ही किया ना मैंने। मान लो कि अगर मैं पानी के अंदर सॉल्ट को डाल देता हूँ, ओके, इफ आई मिक्स द वाटर एंड द सॉल्ट कंटेंट्स इन इट, ओके,
अब मैं वो वाटर को नेचर के अंदर, सनलाइट के अंदर गर्म होने के लिए रख देता हूँ, तो धीरे धीरे जो कि है वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर कहाँ जाएगी, नेचर के अंदर चली जाएगी, और मेरी जो मैंने जहाँ पर भी ये वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके रखा था, वहाँ पर से सॉल्ट जो है वो अभी भी वहाँ पर ही पड़ा होगा। ओके, तो इस तरह से इवापोरेशन की प्रोसेस नेचुरली भी हम लोग देखी हुई है, और इसको आर्टिफिशियली भी हम लोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियली हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि मान लो कि इसको गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दो, तो पानी सारा जो है वो भाप या वाटर वेपर बन के निकल जाएगा, और नमक जो है वो क्या करेगा, कोई सी वेसल्स के अंदर बच जाएगा। ओके, मैंने जो भी वेसल लिया होगा जिसके अंदर ये सॉल्यूशन डाला होगा, तो उसके अंदर से वो जो नमक है वो सेपरेट हो जाएगा, और यही प्रोसेस को हम कहेंगे इवापोरेशन। जितना नाम हार्ड था उससे ज़्यादा इसकी प्रोसेस जो है वो ईजी लगी ना। This method is used for separating a volatile component from a non-volatile component by heating the mixture. Okay, this types of process is known as the evaporation. Okay, examples जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और आपको वही एग्जाम्पल आपको फॉलो करना है। ओके, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में, कि ये मेथड जो है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए by the heating of the mixture is known as the evaporation. Okay, what is the centrifugation? Centrifugation की मेथड जो है वो क्या करती है, तो वो डेंसर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से मिक्स होने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड का, कि मान लो कि क्या होता है कि एक मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर से सारे जो है वो मिल्क के कार्टन्स जो है वो भरे हुए जाते हैं। ओके, तो मिल्क के कार्टन्स जो एक मशीन के ऊपर से भरे हुए जाते हैं। अभी मान लो कि कोई बॉक्स के अंदर मिल्क जो है वो नहीं डाला हुआ है, तो इसका मतलब कि वो मिल्क का बॉक्स अगर खाली है, तो वो मुझे सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे पता है कि इसको सेपरेट करना, अभी एक एक बॉक्स को मैं चेक करने तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि मान लो कि कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो बहुत ही थाउजेंड्स और लाख्स के अंदर वो सारे कार्टन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो मैं इसका इजी टेक्निक क्या करूंगा कि जो मैं कि कोई पंखा जो है वो साइड में चला दूंगा, तो जो भरे हुए बॉक्स होंगे मिल्क के, वो क्या करेंगे, वो मशीन से आगे चले जाएंगे, जबकि खाली बॉक्स जब भी आएगा पंखे के सामने, वो क्या हो जाएगा, वो उड़ के साइड में चला जाएगा। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल अगर हम लोग लाइटर पार्टिकल्स को डेंसर पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करके निकाले, और मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया ना, उस एग्जांपल को ये यहाँ पर हम लोग निरमा इंडस्ट्री है ना वहाँ पर फॉलो करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि भाई बड़े बड़े कार्टन्स के, बड़े बड़े मशीन्स के अंदर ऊपर से क्या जाते हैं, जो बॉक्सेस है वो निरमा के पैकेजिंग होके बॉक्स चले जाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार कोई बॉक्स जो है उसके अंदर कोई सामान नहीं होता है, तो वो खाली बॉक्स भी चला जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया है। पर अभी इसको स्मॉल व्यूज के अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर हम लोगों को अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मशीन जो आती है वो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का इस्तेमाल करूँगा, जो कि क्या करेगी, जो घूमेगी, रोटेट होगी, और रोटेट होने के साथ साथ वो क्या करेगी, लाइटर पार्टिकल्स को डेंसर पार्टिकल्स से अलग कर देगी। क्योंकि हमको पता है कि इस तरह का टेक्निक जो है ना मम्मी भी इस्तेमाल करती है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग जब भी देखोगे ना, तो मम्मी अगर व्हीट में से रॉक को सेपरेट करना हो ना, तो मम्मी क्या करती है, उसको हिलाती है। ओके, मम्मी जब भी व्हीट को लेगी और क्या करेगी, उसको हिलाएगी, तो सारे जो कंकड़ होंगे वो कंकड़ कहाँ निकल जाएंगे, साइड में निकल जाएंगे, और सारे जो वीट है वो वीट कहाँ पर रह जाएंगे, नीचे की ओर रह जाएंगे। तो उस तरह से मम्मी जो है वो फिर क्या करती है, वो रॉक्स को और जो जो सॉलिड्स पार्टिकल निकले हैं वो उसको डाल देती है साइड में निकाल के। तो इसी का मेथड का इस्तेमाल अगर लोग हम लोग इंडस्ट्री के पर्पज में करें सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से, तो उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, so this is the basic definition and I have given you the lots of example for it and you can easily memorize it. Okay. अब बात करते हैं डिसेंटेशन ऑफ यूजर, डिसेंटेशन मेथड का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनेल का इस्तेमाल करेंगे। ये सेपरेटिंग फनेल जो है ना, नाम ही इतना हार्ड है। सेपरेटिंग फनेल है क्या, वो पता है आप लोगों को? सेपरेटिंग फनेल जो है ना, वो एक टाइप का बीकर है। बीकर यानी कि एक टाइप की हम लोग क्या लेंगे, एक फनेल लेंगे, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ों को डाल देंगे। जिस भी दो चीज़ों को हमको सेपरेट करना है ना, वो दो चीज़ों का सॉल्यूशन लेके उसके अंदर डाल देंगे। मतलब कि कैरोसिन और वाटर है अभी मेरे पास, तो कैरोसिन और वाटर का सॉल्यूशन है। अभी मेरी जो क्या करते हैं, मेरे पास जो डब्बा है और डब्बे के अंदर दो चीज़ें मिक्स हो गई है गलती से, कैरोसिन और वाटर उसके अंदर मिक्स हो गया है। सो नाउ व्हाट शुड आई डू? सो आई हैव टू टेक द कैरोसिन एंड वाटर सॉल्यूशन इनटू द फनेल। उसको मैं क्या करूँगा, फनेल के अंदर डाल दूंगा, और फनेल के अंदर डालने के बाद थोड़ी देर वेट करूँगा।
तो धीरे 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 करके केरोसिन और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे अपने आप ही सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वाटर के जो पार्टिकल्स है वो एज कम्पेयर टू द केरोसिन वो लाइटर होते हैं, इसीलिए वो नीचे रहेंगे और केरोसिन के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे, और धीरे धीरे करके फिर वो दो चीज़ें वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका जो वाल्व है वो वाल्व मैं जब भी खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, जब भी जितना वाटर सेपरेट हुआ है वो वाटर यहाँ पर आने तक मैं यहाँ पर से वाल्व खुला रखूंगा, और फिर जब भी वाटर का कंटेंट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा, दैट आई हैव टू स्टॉप द वाल्व। ओके, तो वाटर और केरोसिन जो है वो सेपरेट हो गए। ओके, this method is used for separating the mixture of immiscible liquids. Now what is the immiscible liquid? Immiscible liquids यानी कि जो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं पर वो हेट्रोजेनियसली मिक्स हुए हैं, ये होमोजेनियसली मिक्स नहीं हुए, क्योंकि इसके अंदर के पार्टिकल्स हम लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भाई जब भी पानी के ऊपर तेल गिरता है तो आप लोग देख सकते हो कि तेल के जो लिक्विड्स के जो ड्रॉपलेट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे पानी के ऊपर, क्योंकि वो तैर रहे होंगे, तो आप लोग सेपरेटली उसको देख सकते हो अपनी नेकेड आई से भी। तो इस तरह के जो लिक्विड्स का मिक्सचर बना है उसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहेंगे, कि वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते। ओके, तो इसी का फिनोमिना का इस्तेमाल मैंने किया है सिर्फ फनेल के अंदर। फनेल के अंदर मैंने दोनों का चीज़ों का सॉल्यूशन डाल दिया, दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन डालने के बाद मैंने वेट किया, 15-20 मिनट तक मैं वेट करूंगा ना तो सारे पार्टिकल्स अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। फिर मुझे सिर्फ वाल को ओपन और क्लोज करना है, तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा that water can be separated from the kerosene, and this is the method as we known as the decantation. Okay, सबसे पहली मेथड हम लोगों ने सीखी evaporation, then we have study about the centrifugation, and this is the third method that we are going to study for the separating of the mixture। भाई ये सारी methods की study हम लोग क्यों कर रहे हैं, for the separation of the mixture। okay, तो ये decantation की method जो है वो third method थी। अब बात करते हैं sublimation method की। सो व्हाट इज द सब्लिमेशन मेथड? सब्लिमेशन मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर देख ली है, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सब्लिमेशन की मेथड का इस्तेमाल जो है वो मैंने क्यों किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने सॉलिड से लेकर सीधा गैस में कन्वर्ट होने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, सब्लिमेशन मेथड का। ओके, उसी मेथड का इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, तो सॉलिड में से मैं गैस को सेपरेट कर सकता हूँ, और वो गैस जो है वो कॉटन के ऊपर जब भी स्टोर्ड होगा तो उसका लिक्विड में कन्वर्जन होगा, और उसका इस्तेमाल मैं क्या कर सकता हूँ, सब्लिमेशन के रूप में कर सकता हूँ। ओके, so it will be a method to separate the mixture of the subliminal component from the non subliminal component by heating the mixture। okay, that can be separate the solid from, that can be separate the gas from the solid, as we are going to separate the aluminum chloride from the aluminum chloride and the salt। okay, अब बात करते हैं डिस्टिलेशन मेथड की। ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिलेशन मेथड वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर्स ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स यानी कि अभी इस तरह के लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए होंगे, इसको सेपरेट करना बहुत ही हार्ड होगा। ओके, तो इसको सेपरेट करने के लिए अभी हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसी मेथड को हम कहेंगे डिस्टिलेशन मेथड। इस पर जनरली हम लोग क्या करेंगे कि भाई हीटिंग का ही इस्तेमाल करेंगे, बट हीटिंग का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, तो अगर जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ओके, सपोज कि मेरे जो मिक्सचर है उसमें एसीटोन और वाटर जो है वो यहाँ पर मिक्स हो गए, मान लो यहाँ पर जो है वो एसीटोन और वाटर जो है वो मिक्सड हो गए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा, तो जैसे ही मैं हीट करूँगा यहाँ से जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे, हीट होंगे, और वाटर वेपर जो है वो यहाँ पर आएगी, और वाटर वेपर से यहाँ पर कंडेंसर होगा। कंडेंसर का काम क्या है, ठंडा करना, कूल डाउन ऑफ द वाटर वेपर। कंडेंसर कहाँ पर होता है, आपके एसीज के अंदर भी, आप जो एसीज के अंदर बैठते हो, एसीज आपके घर में होते हैं ना, उसके अंदर भी कंडेंसर होता है। वो ही जो है वो बाहर की एयर का क्या करता है, कंडेंस करके आपके घर में ठंडी हवा को लाता है। इसी वजह से कंप्रेसर के बाहर अगर आप टेम्परेचर देखने जाओगे ना तो बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। कंप्रेसर के साथ बाजू में तो आप खड़े भी नहीं रह सकते, उतना हीटिंग कर रहा होगा, क्योंकि उसने सारी की सारी जो एयर है नेचर के अंदर वो सारी की सारी अपने अंदर कंप्रेस कर ली होगी, और उसी को फिर क्या किया होगा, उसने कंडेंस करके फिर आपके घर में ठंडी हवा दी होगी। ओके,
तो कंडेंसर जो है वो क्या करेगा, तो जो वाटर यहाँ से हीट होके निकला है वाटर वेपर के फॉर्म में, वो वाटर वेपर के फॉर्म को वो क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो यहाँ से फिर निकलेंगे और यहाँ पर जो हमारा बीकर होगा, ओके, उसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएंगे। ओके, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर में से अगर एसीटोन को सेपरेट करना है तो हम उस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेथड यूजिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिसिबल लिक्विड्स। अगर कोई पूछे कि इमिसिबल लिक्विड्स को मुझे सेपरेशन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिसेंटेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जबकि कोई पूछे कि मुझे मिसिबल लिक्विड का सेपरेशन करना है तो मुझे कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, so write down the three questions that we have studied here. Question number 1, question number 3, write the decantation method. Question number 4, write the distillation method. ये दो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पहले ऑलरेडी दो क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या था, टिंडल इफेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेपरेशन मेथड के अंदर डिसेंटेशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 4 भी है वो भी सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर के अंदर डिस्टिलेशन मेथड को एक्सप्लेन करना है। Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone and take care of yourself.